السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو کانسیپچل نرسنگ اکیڈمی۔ اگر آپ بی ایس نرسنگ، پوسٹ آر این، جنرل نرسنگ، انٹرنشپ یا انکلیکس کی پریپریشن کر رہے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ کانسیپچل نرسنگ اکیڈمی کا مشن ہے نرسنگ ایجوکیشن کو سمپل، کانسیپچل، ایویڈنس بیسڈ اور کلینکلی ریلیونٹ بنانا، تاکہ اسٹوڈنٹ صرف ایگزامس پاس نہ کرے بلکہ کمپیٹنٹ، کانفیڈنٹ اور پروفیشنل نرس بھی بن سکیں۔ آج سے ہم اپنی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اسپیشلی ڈیزائنڈ سیریز شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے نرسنگ سکلز ماسٹر کلاس۔ اس ماسٹر کلاس میں ہم بیسک سے لے کر ایڈوانس نرسنگ سکلز تک ہر پروسیجر کو پروفیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق سیکھیں گے۔ ہر لیکچر میں ہم صرف پروسیجر ہی نہیں سیکھیں گے بلکہ اس پروسیجر کی سائنٹیفک بیسس، کلینکل ریشنل، انفیکشن پریونشن پرنسپلز، نرسنگ رسپانسبلٹیز، کامن مسٹیکس، اوسپی اوس کی پریپریشن اور وائوا پوائنٹس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، نرسنگ صرف انجیکشنز لگانا یا میڈیسن دینے کا نام نہیں ہے۔ نرسنگ ایک سائنس بھی ہے، ایک آرٹ بھی ہے اور سب سے بڑھ کر ایک رسپانسبلٹی ہے۔ ہر پروسیجر جو ایک نرس پرفارم کرتی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر پیشنٹ کی ہیلتھ اور سیفٹی پر ہوتا ہے۔ اس لیے اس ماسٹر کلاس کا ہمارا مقصد ہے کہ جب بھی آپ کوئی نرسنگ اسکل پرفارم کرے تو آپ صرف کیسے کرنا ہے ہی نہ جانیں بلکہ کیوں کرنا ہے اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہ اپروچ آپ کی کلینکل ججمنٹ کو امپروو کرے گی اور آپ کو ایک سیف اور پروفیشنل نرس بنانے میں مدد دے گی۔ آج ہم اس ماسٹر کلاس کا پہلا اور سب سے امپورٹنٹ ٹاپک شروع کر رہے ہیں جو کہ ہے ہینڈ ہائیجین۔ ہو سکتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس سوچے کہ ہینڈ ہائیجین تو بہت سمپل ٹاپک ہے، لیکن اصل میں یہ نرسنگ پروفیشن کی فاؤنڈیشن ہے۔ اگر ہینڈ ہائیجین نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، تو دنیا کا بیسٹ انجیکشن ٹیکنیک، بیسٹ ڈریسنگ ٹیکنیک یا بیسٹ آئی وی کینولیشن بھی پیشنٹ کو انفیکشن سے نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے دنیا بھر کے ہاسپٹلز اور ہیلتھ کیئر آرگنائزیشنز ایک ہی میسج دیتے ہیں: کلین ہینڈز سیو لائفز۔ اسٹوڈینٹس، کسی بھی لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس لیکچر کے اینڈ تک ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ اس لیکچر کے بعد آپ صرف ہینڈ ہائیجین کی ڈیفینیشن یاد نہیں کریں گے بلکہ اس کو اپنی کلینکل پریکٹس میں کانفیڈنٹلی اپلائی بھی کر سکیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہینڈ ہائیجین اصل میں ہوتی کیا ہے اور اس کے اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ہینڈ ہائیجین کو پیشنٹ سیفٹی کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس کیوں کہا جاتا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ مائکرو آرگینزم ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ تک کس طرح ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ٹرانسمیشن کو صرف ایک سمپل ہینڈ ہائیجین پریکٹس کس طریقے سے روک سکتی ہے، یعنی کس ٹائپ کے طریقے، کس میتھڈ سے وہ روک سکتی ہے۔ لیکچر کے دوران ہم ہیلتھ کیئر ایسوسیٹنگ انفیکشنز، چین آف انفیکشن اور WHO 5 مومنٹس آف ہینڈ ہائیجین کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہم ہینڈ واشنگ اور الکوہل بیسڈ ہینڈ رب کے درمیان ڈفرنس بھی سمجھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کس سچویشن میں کون سا میتھڈ یوز کرنا چاہیے۔ لیکچر کے اینڈ تک آپ کریکٹ WHO ہینڈ واشنگ ٹیکنیک کو ایکسپلین بھی کر سکیں گے اور پریکٹیکلی پرفارم بھی کر سکیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس لیکچر کو صرف ایگزام کی تیاری کے لیے نہ دیکھیں۔ ہر سلائیڈ کو اپنی کلینکل ڈیوٹی سے ریلیٹ کریں اور سوچیں کہ اگر آپ وارڈ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس نالج کو کس طریقے سے آپ اپلائی کریں گے۔ یہی سوچ ایک اسٹوڈنٹ کو پروفیشنل نرس بناتی ہے۔ اگر ہم انٹروڈکشن کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سوچئے کہ ایک نرس صبح اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کرتی ہے، صرف گھنٹے کے اندر وہ کتنی چیزوں کو ٹچ کرتی ہوگی؟ پیشنٹ کے بیڈ، بلڈ پریشر اپیریٹس، تھرمومیٹر، پیشنٹ کی فائل، ڈور ہینڈل، آئی وی اسٹینڈ، اسٹیٹوسکوپ، کمپیوٹر کی بورڈ اور کبھی کبھی اپنا موبائل فون بھی۔ اب ایک اور سوال، اگر ان میں سے کسی سرفیس پر ہارمفل مائکرو آرگینزمز موجود ہوں اور نرس ہینڈ ہائیجین پرفارم کیے بغیر دوسرے پیشنٹ کو ٹچ کر لے تو کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک، مائکرو آرگینزم ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ تک ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہیلتھ کیئر ورکرز کے ہینڈز کو انفیکشنز ٹرانسمیشن کا سب سے کامن میڈیم مانا جاتا ہے۔ ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہاسپٹل میں ہونے والے بہت سے انفیکشنز صرف پراپر ہینڈ ہائیجین سے پریونٹ کیے جا سکتے ہیں۔
स्टूडेंट्स ये बात याद रखें कि हर पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने आता है, इन्फेक्शन लेने नहीं। और ये हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे सेफ केयर प्रोवाइड करें। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी पेशेंट डिजर्व्स क्लीन हैंड्स। अब हम अपने लेक्चर का सबसे पहला साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि एक हैंड हाइजीन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डब्ल्यूएचओ ने जो हमें डिस्क्राइब किया है, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, हैंड हाइजीन से मुराद अपने हैंड्स को इस तरह क्लीन करना कि डर्ट, ऑर्गेनिक मटेरियल या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। और यही रिडक्शन क्या करेगी, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोक देगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, अक्सर स्टूडेंट्स हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन को सेम समझते हैं। ये एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है। हैंड वॉशिंग और हैंड हाइजीन सेम चीज नहीं है। हैंड हाइजीन एक ब्रॉड टर्म है, जबकि हैंड वॉशिंग उसका सिर्फ एक मेथड है। हैंड हाइजीन के तीन मेजर मेथड्स होते हैं। पहला, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। ये उस वक्त यूज की जाती है जब हैंड्स विजिबली डर्टी हो, ब्लड उन पे लगा हो या कोई भी बॉडी फ्लूइड से वो कंटेमिनेट हो। दूसरा मेथड है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, जिसे हम ABHR कहते हैं। ये रूटीन पेशेंट केयर में यूज होता है जब हैंड्स विजिबली डर्टी ना हो। तीसरा मेथड है सर्जिकल हैंड प्रिपरेशन। ये ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी से पहले परफॉर्म की जाती है और इसका ऑब्जेक्टिव ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना और रेजिडेंट फ्लोरा को रिड्यूस करना होता है। अभी चूंकि हम सिर्फ डेफिनेशन पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम इसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर जितना जितना लेक्चर्स आगे बढ़ता रहेगा, उस लिहाज से हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब एक छोटा सा रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो और पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले हैंड हाइजीन ना करें, तो इसका नुकसान किसको होगा? तो इसका जवाब है सबसे पहले उस पेशेंट को और फिर हेल्थ केयर सिस्टम को। इसीलिए एक प्रोफेशनल नर्स कभी भी हैंड हाइजीन को इग्नोर नहीं करती। अब सवाल ये पैदा होता है कि हैंड हाइजीन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? हैंड हाइजीन पेशेंट सेफ्टी का पहला और सबसे इफेक्टिव स्टेप है। जब हेल्थ केयर वर्कर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के पास जाता है, तो उसके हैंड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर प्रॉपर हैंड हाइजीन परफॉर्म ना की जाए, तो क्रॉस इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रॉपर हैंड हाइजीन ना सिर्फ पेशेंट को प्रोटेक्ट करती है, बल्कि हेल्थ केयर वर्कर्स को भी इन्फेक्शन से बचाती है। इसके साथ हॉस्पिटल स्टे, ट्रीटमेंट कॉस्ट और एंटीबायोटिक यूज भी कम होता है। इसीलिए दुनिया भर में एक ही मैसेज किया जा सकता है, यानी कि यही मैसेज दिया जाता है, क्लीन हैंड्स सेव लाइफ। याद रखिए, एक प्रोफेशनल नर्स हर प्रोसीजर से पहले पेशेंट की सेफ्टी के बारे में सोचती है, और उसी पेशेंट सेफ्टी की शुरुआत जो है वो क्लीन हैंड से होती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, जिसे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस या HAIS कहा जाता है। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होती हैं जो पेशेंट को हॉस्पिटल या किसी हेल्थ केयर फैसिलिटी में ट्रीटमेंट के दौरान डेवलप होती हैं और एडमिशन के वक्त मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर, अगर एक पेशेंट सर्जरी के लिए एडमिट होता है और ऑपरेशन के कुछ दिन बाद उसकी वुंड इन्फेक्टेड हो जाती है, तो इसे सर्जिकल साइट इन्फेक्शन SSI कहा जाता है, जो कि एक HAI है, यानी कि एक हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन है। इसी तरह यूरिनरी कैथेटर की वजह से होने वाली इन्फेक्शन को हम कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन CAUTI और वेंटिलेटर से रिलेटेड इन्फेक्शन को VAP यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है या वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया कहते हैं। इन इन्फेक्शन की सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से बहुत सी इन्फेक्शंस प्रिवेंट किए जा सकते हैं। प्रॉपर हैंड हाइजीन, एसेप्टिक टेक्निक और इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस को फॉलो करके हम ना सिर्फ इसके रिस्क को कम कर सकते हैं, बल्कि इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं। इसीलिए याद रखें, हर बार जब आप हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं, तो आप सिर्फ अपने हैंड्स क्लीन नहीं करते, बल्कि अपने पेशेंट को एक प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन की।
इन्फेक्शन कभी भी अचानक डेवलप नहीं होती। हर इन्फेक्शन एक प्रोसेस को फॉलो करती है जिसे चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। इस चेन के 6 लिंक्स होते हैं: इन्फेक्टियस एजेंट, रिजर्वायर, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री और ससेप्टेबल होस्ट। अगर ये चेन कंप्लीट हो जाए तो इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड हो सकती है। लेकिन अगर हम इस चेन की सिर्फ एक लिंक को भी ब्रेक कर दें, यानी कि इसको हम तोड़ दें, उसके अंदर एरर पैदा कर दें, उसको ट्रिगर कर दें, तो इन्फेक्शन का जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगा। हैंड हाइजीन इसी चेन के मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करती है। जब हेल्थ केयर वर्कर अपने हैंड्स को प्रॉपरली क्लीन करता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक ट्रांसफर नहीं हो पाते। इसीलिए हैंड हाइजीन को इन्फेक्शन प्रिवेंशन का सबसे सिंपल, इफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड माना जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन। स्टूडेंट्स, हर क्लिनिकल सिचुएशन में हैंड हाइजीन का मेथड सेम नहीं होता। इसलिए एक प्रोफेशनल नर्स को पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करना है। पहला मेथड है हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर। इसे उस वक्त परफॉर्म किया जाता है जब हैंड्स विजिबली गंदे हों, डर्टी हों, या उन पे ब्लड लगा हो या बॉडी फ्लूइड से वो कंटेमिनेटेड हो। दूसरा मेथड है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। अच्छा, अब ये जो हम टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन पढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी क्लियर कर दिया था, और इसको फिर हम अभी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये असल में होते किस तरह, कि मतलब हैंड हाइजीन की और कितनी टाइप्स होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं ABHR की। जब हैंड्स विजिबली डर्टी ना हो तो ये रूटीन पेशेंट के लिए की जाती है, यानी कि ये सबसे फास्ट और इफेक्टिव मेथड है। तीसरा मेथड है सर्जिकल हैंड प्रिपरेशन। ये ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी से पहले परफॉर्म की जाती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तादाद को मैक्सिमम हद तक रिड्यूस किया जा सके। याद रखें, सही मेथड का इंतखाब भी उतना ही ज़रूरी है जितना हैंड हाइजीन परफॉर्म करना। अच्छा, एक वर्ड जो हम बार बार जो है पढ़ रहे हैं, नॉर्मल फ्लोरा या रेजिडेंट फ्लोरा, ट्रांजिएंट फ्लोरा, यानी कि हमने इसको बहुत दफ़ा पढ़ लिया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हैंड हाइजीन को अच्छी तरह समझने के लिए हमें स्किन फ्लोरा को, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस को समझना ज़रूरी होगा हमारे लिए। नॉर्मल या रेजिडेंट फ्लोरा ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी स्किन पर नेचुरली मौजूद होते हैं। या आमतौर पर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते और इन्हें कम्प्लीटली रिमूव करना मुश्किल होता है। इसके कंपैरिजन में ट्रांजिएंट फ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पेशेंट, मेडिकल इक्विपमेंट या कंटेमिनेटेड सरफेसेस को टच करने से हमारे हैंड्स पर आ जाते हैं। यही जर्म्स एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक इन्फेक्शन स्प्रेड करने का सबसे बड़ा जरिया बनते हैं, सबसे बड़ा सोर्स बनते हैं। इसीलिए हैंड हाइजीन के मेन ऑब्जेक्टिव ट्रांजिएंट फ्लोरा को रिमूव करना और इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोकना है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ हैंड कंटेमिनेशन। स्टूडेंट्स, एक नर्स अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत सी चीज़ों को टच करती है। इनमें पेशेंट बेड, रेल, स्टेटोस्कोप, ब्लड प्रेशर, यानी इससे पहले भी जो हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है, तो ये तमाम चीज़ें जो सराउंडिंग्स में होती हैं, ये तमाम चीज़ों को एक नर्स टच करती है। इन तमाम सरफेसेस पर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ पेशेंट को टच करना ही कंटेमिनेशन का सोर्स नहीं होता, बल्कि पेशेंट के आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। याद रखिए, हैंड्स देखने में साफ हो सकते हैं लेकिन उन पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर भी मौजूद हो सकते हैं। इसी वजह से हर अप्रोप्रिएट क्लिनिकल मूवमेंट पर हैंड हाइजीन परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम इस लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जिसे WHO 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन कहा जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये 5 मोमेंट्स इसलिए इंट्रोड्यूस किए ताकि हेल्थ केयर वर्कर्स को ये मालूम हो कि किन सिचुएशन में हैंड हाइजीन परफॉर्म करना लाजमी है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
जिस में पहला मोमेंट है बिफोर टचिंग अ पेशेंट। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी पेशेंट को टच करने वाले हों, उससे पहले हैंड हाइजीन परफॉर्म करें। चाहे आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हों, पल्स असेस कर रहे हो, पेशेंट को बेड से उठने में हेल्प कर रहे हो, या फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो। इस मोमेंट का मकसद पेशेंट को उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करना है जो हेल्थ केयर वर्कर के हैंड्स पर मौजूद हो सकते हैं। अगर हम इसके क्लिनिकल एग्जाम्पल की बात करें, तो इमेजिन करें अगर आप वार्ड में इंटर करते हैं और सबसे पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना चाहते हैं, तो पेशेंट को टच करने से पहले हैंड हाइजीन करना ज़रूरी है। और ये जो आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म की, तो ये आपने डब्ल्यूएचओ का मोमेंट 1 जो है वो परफॉर्म किया। डब्ल्यूएचओ का दूसरा मूवमेंट है बिफोर अ क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर। जब भी आप कोई एसेप्टिक प्रोसीजर परफॉर्म करने वाले हों, जैसे आईवी कैनुलेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, वूंड ड्रेसिंग, इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकेशन प्रिपरेशन, उससे पहले हैंड हाइजीन ज़रूर परफॉर्म करें। इस मोमेंट का मकसद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेशेंट की बॉडी के स्टेराइल एरियाज में इंटर होने से रोकना है। क्लिनिकली अगर हम बात करें, तो अगर आप पेशेंट की वूंड की ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, तो ड्रेसिंग शुरू करने से पहले हैंड हाइजीन करना इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो आपने परफॉर्म किया हैंड हाइजीन बिफोर एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, तो ये आपने बेसिकली डब्ल्यूएचओ का सेकंड मोमेंट आपने परफॉर्म किया। इसलिए अगर हम डब्ल्यूएचओ के सेकंड मूवमेंट के इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इसका सबसे मेन मकसद और सबसे मेन फ़ायदा ही यही होगा कि ये जितने भी बॉडी साइड्स हैं, चाहे वो वूंड ड्रेसिंग है या चाहे किसी भी बॉडी की ओपनिंग है, तो इससे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ के थर्ड मूवमेंट की, यानी कि आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। ये वो तीसरा मोमेंट है जिसमें क्या होगा कि जब भी आप ब्लड, यूरिन, स्टूल, वॉमिट, वूंड ड्रेनेज या किसी भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए, तो प्रोसीजर के बाद फौरन हैंड हाइजीन परफॉर्म करें। अगर आपने ग्लव्स पहने हुए थे, तब भी ग्लव्स उतारने के बाद हैंड हाइजीन करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लव्स हैंड हाइजीन का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर हम क्लिनिकली बात करें, तो अगर आप यूरिन बैग एम्प्टी करते हैं या ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो प्रोसीजर के बाद फौरन हैंड हाइजीन परफॉर्म करें। इससे आप खुद भी प्रोटेक्टिव रहते हैं और दूसरे पेशेंट्स को भी इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। फोर्थ मोमेंट है आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। जब भी आप पेशेंट का असेसमेंट कंप्लीट कर लें, वाइटल साइंस चेक कर लें या किसी भी नर्सिंग केयर के बाद पेशेंट को टच कर चुके हों, तो उसके बाद हैंड हाइजीन परफॉर्म करना ज़रूरी है। इसका मकसद ये है कि पेशेंट के हैंड, स्किन या कपड़ों पर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्थ केयर वर्कर के हैंड्स के ज़रिए दूसरे पेशेंट्स या हॉस्पिटल इन्वायरमेंट तक ना पहुँचे। क्लिनिकली अगर हम बात करें, अगर आपने पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया है या उसकी कोई फिजिकल असेसमेंट की है, तो पेशेंट से दूर जाने से पहले हैंड हाइजीन ज़रूर रखें। इसका क्या मकसद होगा कि पेशेंट को टच करने के बाद क्लीन हैंड्स जो हैं वो इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकेंगे, और यही हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अभी हम फिफ्थ स्टेप की यानी फिफ्थ मोमेंट की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास डब्ल्यूएचओ का लास्ट एंड फिफ्थ मोमेंट है, जिसमें आता है कि आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स। फोर्थ में था कि पेशेंट को टच करना, उसके बाद हैंड हाइजीन परफॉर्म करना। और मोमेंट 5 में हम पढ़ते हैं कि पेशेंट्स की सराउंडिंग को टच करना। ये वो आखिरी मोमेंट है जिसमें ज़रूरी होता है कि आप सिर्फ पेशेंट तक आपका जो कंटेमिनेशन है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दूर करने का जो मकसद है, आप सिर्फ उस तक ना रहें, बल्कि जो पेशेंट के सराउंडिंग्स हैं आपने उसका भी ख्याल रखना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप पेशेंट को डायरेक्टली टच करें। अगर आपने सिर्फ पेशेंट के बेड साइड, उसके टेबल, आईवी स्टैंड, मॉनिटर, व्हीलचेयर या कॉल बेल को टच किया है, तब भी हैंड हाइजीन परफॉर्म करना ज़रूरी है। पेशेंट के सराउंडिंग्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेट हो सकते हैं और इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का सोर्स बन सकते हैं। क्लिनिकली अगर हम बात करें, तो अगर आपने सिर्फ पेशेंट की फाइल उठाई या बेड रेल एडजस्ट की और फिर दूसरे पेशेंट के पास जा रहे हैं, तो पहले पेशेंट यानी कि जो पहले पेशेंट से आप फारिग हुए, तो उसके बाद दूसरे पेशेंट तक जाने से पहले आपने हैंड हाइजीन ज़रूर करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ग्लव्स एंड हैंड हाइजीन।
नर्सिंग स्टूडेंट्स की सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि ग्लव्स पहनने के बाद हैंड हाइजीन की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ग्लव्स इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन ज़रूर देते हैं, लेकिन ये हैंड हाइजीन का रिप्लेसमेंट नहीं है। ग्लव्स में माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं और ग्लव्स उतारते वक्त भी हैंड्स कंटेमिनेट हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ग्लव्स पहनने से पहले और ग्लव्स उतारने के बाद हैंड हाइजीन परफॉर्म करें। अगर आप ड्रेसिंग कर रहे हैं और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ग्लव्स रिमूव करते हैं, तो अगले पेशेंट के पास जाने से पहले हैंड हाइजीन का रूल ज़रूर याद रखें, क्योंकि आपने सिर्फ ग्लव्स को जो है ना वो हैंड हाइजीन के रिप्लेसमेंट में यूज़ नहीं करना। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डब्ल्यूएचओ का वो हैंड वॉशिंग टेक्निक जो कि हम ओवरऑल थ्रू द वर्ल्ड जो है वो हम उसको फॉलो करते हैं। यानी कि हैंड वॉश करना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक करेक्ट टेक्निक को फॉलो करना भी ज़रूरी होता है, जो कि हमें डब्ल्यूएचओ ने सजेस्ट किया है। हैंड वॉशिंग शुरू करने से पहले रिंग्स, ब्रेसलेट या कोई भी रिस्ट वॉच हो वो रिमूव कर दें अगर पॉसिबल हो। नेल्स शॉर्ट और क्लीन होने चाहिए और स्लीव्स को रिस्ट से ऊपर कर लेना चाहिए। सबसे पहले हैंड्स को क्लीन रनिंग वाटर से वेट करें, फिर इतना लिक्विड सोप अप्लाई करें कि हैंड्स के तमाम सरफेसेस कवर हो जाएं। याद रखें, प्रॉपर प्रिपरेशन इफेक्टिव हैंड वॉशिंग का सबसे पहला स्टेप है। डब्ल्यूएचओ के टेक्निक्स में शामिल हैं, यानी कि जो टेक्निक्स जो स्टेप्स डब्ल्यूएचओ हमें रेकमेंड करता है, अभी हम उन स्टेप्स को देखेंगे। जो इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है पाम्स को रब करने से। यानी कि अपने पाम्स को रब करें जो कि आपने अपने हाथों को वेट किया है और फिर सोप लिया है। तो सबसे पहले आप पाम टू पाम रब करते हैं, फिर हैंड्स के बैक को क्लीन करें। उसके बाद फिंगर्स के दरमियान, बैक ऑफ फिंगर्स, थम्स और फिंगर टिप्स को अच्छी तरह रब करें। आखिर में रिस्ट को भी क्लीन करें। इसके बाद हैंड्स को रनिंग वाटर से धो लें, यानी कि रिंस करें और डिस्पोजेबल पेपर टॉवल से ड्राई करें। अगर टैप ऑटोमेटिक ना हो तो उसे बंद करने के लिए पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें। याद रखिए कि हैंड वॉशिंग का जो रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो 40 टू 60 सेकेंड्स है और हर स्टेप को प्रॉपरली परफॉर्म करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड रब टेक्निक। यानी कि जब हैंड्स विजिबली डर्टी ना हो तो हम ABHR हैंड हाइजीन करते हैं, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करते हैं, जो कि सबसे फास्ट और इफ़ेक्टिव मेथड है। सबसे पहले अपने पाम में रिकमेंडेड क्वांटिटी में अल्कोहल हैंड रब लें। फिर डब्ल्यूएचओ टेक्निक के मुताबिक पाम्स, बैक ऑफ हैंड्स, फिंगर्स के दरमियान, बैक ऑफ फिंगर्स, थम्स, फिंगर टिप्स और रिस्ट को अच्छी तरह रब करें। रबिंग को 20 से 30 सेकंड्स तक जारी रखें, जब तक हैंड्स कंप्लीटली ड्राई ना हो जाएं। याद रखिए, अल्कोहल हैंड रब लगाने के बाद हैंड्स को टॉवल से वाइप ना करें और ना ही पानी से वॉश करें। हैंड्स को नेचुरली ड्राई होने दें। स्टूडेंट्स, रिसर्च के मुताबिक हैंड हाइजीन परफॉर्म करते वक्त कुछ एरियाज अक्सर मिस हो जाते हैं। इनमें थम्स, फिंगर टिप्स, फिंगर्स के दरमियान, बैक ऑफ फिंगर्स, रिस्ट और नेल्स के आसपास का एरिया सबसे कॉमन है। अगर ये एरियाज प्रॉपरली क्लीन ना हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही रह जाते हैं और इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ओस्की से रिलेटेड एक टिप दूंगी। एग्जामिनर्स खास तौर पर देखते हैं, यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये पता नहीं होता, वो हैंड हाइजीन का जो चेकलिस्ट है वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको जो है ना ये कॉमन मिस्टेक्स या वो कॉमन पॉइंट्स के बारे में पता नहीं होता जो कि एक एग्जामिनर आप में देखता है परफॉर्म करते हुए, और इसी की वजह से आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। एग्जामिनर्स खास तौर पर देखते हैं कि स्टूडेंट्स थम्स और फिंगर टिप्स को सही टेक्निक से क्लीन करते हैं या नहीं। ये आपका एक मेन पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है जब भी आपकी अगले ओस्की ओसपी हो, तो उसके लिए आप लोगों ने ये वाला जो पॉइंट है याद रखना है। और जब आप ये परफॉर्म करें तो इन थम्स और फिंगर टिप्स को आपने अच्छे तरीके से सही टेक्निक के जरिए आपने करना है, ताकि एग्जामिनर्स को पता चल सके कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग हैंड हाइजीन। अब हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स अक्सर करते हैं। इन मिस्टेक्स में रिकमेंडेड टाइम से कम हैंड वॉशिंग करना,
थम्स और फिंगर टिप्स को मिस करना, ज्वेलरी पहने रखना, विजिबली डर्टी हैंड्स पर सिर्फ अल्कोहल हैंड रब यूज करना और ग्लव्स उतारने के बाद हैंड हाइजीन ना करना शामिल है। इन छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। क्लिनिकली अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो हमेशा डब्ल्यूएचओ टेक्निक को फॉलो करें। जो टेक्निक इससे पहले हमने डिस्कस किया है इसको ही फॉलो करें और हर स्टेप को प्रॉपर टाइम के साथ कंप्लीट करें, क्योंकि छोटी से छोटी गलती जो है वो बड़े से बड़े इन्फेक्शन की तरफ लेकर जा सकती है। स्टूडेंट्स, हैंड हाइजीन सिर्फ एक नर्सिंग स्किल नहीं बल्कि हर नर्स की प्रोफेशनल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर नर्स की जिम्मेदारी है कि डब्ल्यूएचओ और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस को फॉलो करे, हर पेशेंट के साथ करेक्ट हैंड हाइजीन परफॉर्म करे और पेशेंट्स और उनके तमाम अटेंडेंट्स को भी हैंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस के बारे में एजुकेट करे। एक प्रोफेशनल नर्स सिर्फ खुद हैंड हाइजीन नहीं करती बल्कि अपने कुलीग्स के लिए भी एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनती है, क्योंकि याद रखें, अ गुड नर्स treats the patient but a great nurse also prevents infection। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यही कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि अब आप सिर्फ हैंड हाइजीन की डेफिनेशन ही नहीं बल्कि उसकी इम्पोर्टेंस, डब्ल्यूएचओ 5 मोमेंट्स और करेक्ट हैंड हाइजीन के प्रैक्टिसेस को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। याद रखिए, एवरी पेशेंट डिजर्व सेफ केयर एंड एवरी सेफ प्रोसीजर बिगिंस विद क्लीन हैंड्स। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग स्टूडेंट्स इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप किसी नर्सिंग स्किल पर लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नर्सिंग स्किल्स मास्टर क्लास के अगले लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट नर्सिंग स्किल को कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिकली डिटेल के साथ सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हमेशा सेफ नर्सिंग केयर प्रोवाइड कीजिए। अल्लाह हाफिज़।